morning, sir. Sir. Good morning, Anunay. So once again, welcome back all of you in social science subject live class for standard 9. Okay. And good morning, Sapna. Sapna Kumari, good morning, beta. Yes, Good morning, as I sir. can see, good morning, beta. As I can see right now in my screen, around 35 students have joined the class. Okay. So I am just telling the yesterday's attendance. Again, Devyani Dhande was absent. Then Krishna and Manasvi Ekre were absent. Nilesh Thipe, Prathmesh Bhoyer. Okay. Then Savri Dhote was absent. Though I have called her, so she told that she was not feeling well. Then Siddhant Dhande and Siddhi Khurana. Okay. So Siddhi Khurana was out of station yesterday, so she might not be able to attend the class for 4-5 days. Okay. Then yesterday Vedant Balki was absent. Kaveri Dhanorkar. Okay. Then Pooja Vidhate. Pooja, you have joined with 2 numbers. Pooja Vidhate. Yes, she was also present with another number. Okay. So then Siddharth Kaur. Okay. And Sumit Sharma. Okay. Chaliye. So do you have any doubt till now? If there is no doubt, then we'll proceed for the today's section. Hello students, Sandhya. Yes, sir. Any doubt? Good morning, sir. Your voice is coming low, beta. Please speak again. No, sir, no doubt. Hello. Yes, No, Soumya sir. Soni. ठीक है, fine. चलिए, so just wait for a minute so that I could share the screen. Yes. Is the chapter visible? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So in yesterday's section, we come across with a second feature of democracy. Okay. So what is the second feature of democracy? Okay. So a democracy must be based on a free and fair election. A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. Okay. So a democracy must be based on a free and fair election. And a democracy में election कैसे होने चाहिए? Free and fair. Free and fair. Where those currently in power have a fair chance of losing. Now currently in power मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, वह पॉलिटिकल पार्टी भी क्या करे? इट हैज ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग. अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग का मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के हार जाए. इसका यहाँ सेंस ये है कि इलेक्शन इस तरीके से होना चाहिए, इलेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि जो पार्टी पावर में है वो अपने पावर का मिसयूज ना कर सके, और जब वो पावर का मिसयूज करने की स्थिति में नहीं रहेगी, जब पार्टी अपनी पावर का मिसयूज करने की कंडीशन में नहीं रहेगी, तो क्या होगा? जितना उसका जीतने का चांस है उतना ही उसका
हारने का भी चांस है। ठीक है, जस्ट अ मिनट बेटा, one new student has sent me the joining request. Just let me complete the process. है ना, thank you. So that is what the second feature of democracy. So we shall find out more about the process of democratic election in chapter 3. Okay, so when we will be doing chapter 3, okay, there we will learn lot many things about the election process in India. Okay, so that section is over. Let us come to the next point. Okay, I think, okay, so the next feature that we are having is related to what? The next feature of democracy, and that is what? One person, one vote, one value. Okay. So the next topic is titled with one person, one vote and one value. ये हमारा next title है. Do anyone remember, had we ever studied or come across this terminology? क्या आप में से किसी को याद है कि ये टर्मिनोलॉजी, ये टर्म, ये फ्रेज हमने और कभी डिस्कस किया है किसी क्लास में? यस सर। यस सर। वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू, है ना? ये हमने किसी न किसी क्लास में डिस्कस किया है। ठीक है, कृपया ये बताइए कि वेयर वी हैव डिस्कस्ड? सर, इन हिस्ट्री। हाँ, यस, इन विच क्लास? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना, इन दिस ईयर। वेरी गुड। अच्छा, स्टैंडर्ड 8 सिविक्स में भी हमने कहीं पढ़ा था इसको। In standard 8 civics also we have discussed all these things. Yes sir, in the chapter equality. एक चैप्टर था हमारा इक्वालिटी वाला, है ना? उस चैप्टर में भी हमने ये वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू वाला फंडा डिस्कस किया था। ठीक है, जब हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? When we have discussed about, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। समझ में आया? ओके, सो देयर वी हैव डिस्कस्ड दिस। चलिए, सो लेट अस कम टू द पॉइंट. So what this one person, one vote, one value means? Okay. So we already read about how the struggle of or struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. So this principle of one person, one vote, one value, ये जो one person, Pranjali, switch off your mic. तो ये जो वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की जो स्ट्रगल है, इन द डेमोक्रेसी, इन द स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी, देयर वाज एन इम्बाइब्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. Okay, so this principle has now come to be accepted almost all over the world. डेमोक्रेसी का यह जो प्रिंसिपल है, ये लगभग पूरे संसार में आज के तारीख में एक्सेप्टेबल.
Okay, yet there are many instances of denial of equal right to vote. इसके बावजूद भी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर डिनायल मतलब मना कर देना. सो डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट मीन्स वहां पर इक्वल वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Okay. For example, until 2015 तक in Saudi Arabia, women did not have right to vote. ठीक है? So अभी 2015 तक जो women's थी, महिलाएं जो थी, उन्हें right to vote नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था. ठीक है? Then there is one more country, Estonia. Now, Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. Estonia रशिया का एक नेबरिंग कंट्री. तो हजारों साल पहले माइग्रेशन के टाइम पीरियड में कुछ ऐसा हुआ कि रशियन कम्युनिटी, रशिया को बिलोंग करने वाले जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग जो थे वो माइग्रेट होकर के कहाँ चले गए? एस्टोनिया के इलाके में चले गए. अब उनकी जो जनरेशन है वो वहीं पैदा हुई, आगे बढ़ती रही. ठीक है? परंतु एस्टोनिया के जो लोग हैं उन्होंने अपना सिटीजनशिप रूल इस तरीके से बनाया है कि पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी always find it difficult to get the right to vote. उन्हें क्या नहीं मिलता? वोट डालने का अधिकार नहीं मिलता. ठीक है? Likewise in Fiji, फिजी एक कंट्री का नाम है. So in Fiji the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. Okay, Fiji जो है वो कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है फिजी. एक किसी जमाने में बड़ी संख्या में भारत के रहने वाले लोग फिजी में जाकर के बस गए थे. एज ऑन टुडे, आज के तारीख में फिजी की टोटल पॉपुलेशन में इंडियन पॉपुलेशन का परसेंटेज अराउंड 35 to 40%. परंतु फिजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है, यानी जो इलेक्शन का सिस्टम वहां पर बनाया, उसमें उन्होंने क्या किया कि इंडिजिनियस फिजी यानी फिजी का जो मूल निवासी है उसके वोट की वैल्यू इंडियन फिजियन यानी भारतीय मूल के फिजी के निवासी के कंपैरिजन में ज्यादा होगी. अब ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, वन फिजियन है ना, वन वोट ऑफ फिजियन, एक ओरिजिनल फिजी का वोट है. ठीक है? एंड देयर इज वन वोट ऑफ इंडियन. ठीक है? तो हो सकता है कि इंडियन मूल के, भारतीय मूल के व्यक्ति के एक वोट की वैल्यू कितनी काउंट करें? 1. और फिजी के एक व्यक्ति की वोट वैल्यू कितनी काउंट करें? 1.5. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक. So this is what the valuation system. So vote of an indigenous Fiji, यानी फिजी का जो मूल निवासी है उसके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में? देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, democracy is based on a fundamental principle of political equality. Democracy किसके ऊपर बेस है? It is based on a fundamental principle of political equality.
यानी डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए। ठीक, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी? दैट इज each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। ठीक है, यानी हर एडल्ट सिटीजन, हम यहाँ एडल्ट सिटीजन का मतलब क्या है, एवरी एलिजिबल सिटीजन, हर सिटीजन जिसकी एज वोट डालने लायक हो गई है, ठीक है, मस्ट हैव वन वोट and each vote must have one value, that is one vote, okay, each vote that is again one vote and one value. So what is the principle? The principle is one vote, okay, one person, each vote that is one person, so one person can cast one vote and that must have one value। यहां तक बात आई समझ में? Sir? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, yes, Sir, when India got the law of right to vote to all, so there was no discrimination like between men and women or like that. That was Yes, a sir. Yes, that we will discuss in chapter 3 also। ठीक है, the question that you have asked right now, it is the part of our chapter 3, okay, but I am telling you, explaining you here also, when India has adopted the constitution in 1950, okay, so the process of constitution making, has started, okay, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रोसेस थी वो 1946 में ही शुरू हो गई थी। ठीक है, सो 1946 के समय से ही इंडिया ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया या एडॉप्ट किया, उसमें ऑलरेडी हमने वो सिस्टम बना लिया था। ठीक है, यानी हमने किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा। ऑल वेदर इट वाज मैन और वुमेन हैव द राइट टू कास्ट द वोट, सभी लोगों को क्या दे दिया गया था, वोटिंग राइट दे दिया गया। फर्क इतना है कि व्हेन in 1950 we have adopted, okay, the person with age 21 years, कितनी एज, 21 ईयर। सो जब हमने 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, सो व्हाट वाज द एज limit for allowing the person to cast the vote? It was 21 years. Okay, later on around 1991 somewhere the age reduced up to 18 years। ठीक है, तो जब हमने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, एट दैट टाइम 21 ईयर एज वाज फिक्स, तो 21 साल थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरीके से 18 इयर्स की एज 1991 के आसपास करी। सो देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एज फार एज कंसर्न अबाउट कास्टिंग द वोट। वोट कास्ट करने को लेकर के इंडिया में कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Understood. अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, चलिए, Yes, yes, sir. Got it. चलिए। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ दिस नेक्स्ट सेक्शन इज what is it?
drawing. It is a cartoon. Okay, now this cartoon is about the election in Iraq held after Saddam Hussein regime. Okay, he is shown behind the bars. Compare the message of this cartoon with the first cartoon in this chapter. ठीक है, अभी आपको इसमें कुछ करना नहीं है, तो what you are supposed to do? What you people are supposed to do? Hello, Yashvi Devikar. Yashvi Devikar. Am I audible, Kartikeya? हाँ, good. ठीक है. So, all of you have to make this cartoon in your portfolio notebook. इसमें Portfolio. अच्छा, तो प्लेन पेपर A4 साइज प्लेन पेपर पर बनाओगे या नोटबुक के पेपर पर बनाओगे? Notebook sir, notebook. A4 size. A4 size paper. This should be made on A4 size paper. इतनी बात आई समझ में? इतनी बात आई समझ में? ठीक है. And it should be made on landscape mode. किस पे बनाओगे? Landscape mode. Is it clear? Yes sir. Yes, So, Yes, sir. as it is बनाना, जो लेटर्स लिखे हैं at last, one man one vote, ये पूरे के पूरे. Got it? चलिए. So let us continue with the next feature of democracy. So what would be the next feature? The next feature is related to rule of law. Okay. So what would be the next feature? The next feature is related to rule of law and respect for rights. Now rule of law means country में इलेक्टेड गवर्नमेंट किस तरीके से शासन करेगी. दैट इज हाउ शुड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट रूल ऑन द कंट्री. देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट किस तरीके से शासन करना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ and respect for rights. ठीक. So इस सेक्शन में हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर वर्ल्ड के एक दूसरे कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे. ठीक है. Now, so the example is from a country Zimbabwe. Now Zimbabwe attained independence from, sorry students, so Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980. ठीक है. So 1980 में जिम्बाब्वे ने व्हाइट माइनॉरिटी रूल मतलब अंग्रेजों के शासन से मुक्ति प्राप्त की. So till 1980 तक ब्रिटेन में, सॉरी जिम्बाब्वे में किस कॉलोनियल पावर का रूल था? इट वॉज ब्रिटिश. ओके. सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी which has a short form ZANUPF, ZANU-PF. ठीक. The party which led the freedom struggle. So 1980 के बाद से लेकर के, ठीक है, लगभग 2010 तक 30 है ना, 30 से 32 साल तक लगातार जिम्बाब्वे में एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी का रूल चलता रहा.
its leader, the leader of that political party, Robert Mugabe, ruled the country since independence. ठीक है, उस पार्टी के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, वो आजादी के बाद से ही देश के प्रेसिडेंट के रूप में कंट्री पर रूल कर रहे थे. इलेक्शंस वेर हेल्ड रेगुलरली बट ऑलवेज वॉन बाय द सेम पॉलिटिकल पार्टी. कहने को उस कंट्री में इलेक्शन होते थे, परंतु हमेशा इलेक्शन कौन जीतता था? द वन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी. प्रेसिडेंट मुगाबे was popular but also used unfair practices in election. पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, लोग बाग अभी भी उन्हें चाहते थे, बट एट द सेम टाइम he used unfair practices in election. चुनाव जीतने के लिए हर तरह का गलत तरीका वो यूज करते थे. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Over the years मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, जो प्रेसिडेंट थे रॉबर्ट मुगाबे की जो गवर्नमेंट थी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए. ठीक है, एंड इट इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल. तो प्रेसिडेंट की पावर रेगुलर इंक्रीज करी और उन्हें लेस अकाउंटेबल, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं. द अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड. सरकार जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट अपनी पुलिस की मदद से क्या करती थी? अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे, अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको हैरास मतलब परेशान करती थी. ठीक है, और अपोजिशन पार्टी की जो भी मीटिंग्स वगैरह होती थी उसको डिसरप्टेड मतलब तहस नहस करते थे, बर्बाद करते थे. Public protests and demonstrations against the government were declared illegal. ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट होते थे, जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन होता था, उन सभी को गवर्नमेंट ने क्या किया? इलीगल डिक्लेयर कर दिया. यानी अब गवर्नमेंट का अपोजिशन हो ही नहीं सकता. There was a law that limited the right to criticize the president. एक अलग से कानून बनाया गया और उस कानून में लिख दिया गया कि प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता. टेलीविजन एंड रेडियो were controlled by the government and gave only the ruling party's version. ठीक है, जो मीन्स ऑफ मीडिया थे, टेलीविजन और रेडियो, उस पर किसका कंट्रोल था? गवर्नमेंट का. एंड इट गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन, और उसमें सिर्फ रूलिंग पार्टी के एक्टिविटीज के बारे में बताते थे. देयर वेर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, कुछ न्यूज़पेपर्स इंडिपेंडेंट भी थे. ठीक है, बट गवर्नमेंट harassed those journalists who went against it. यदि कोई जर्नलिस्ट या कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटर, न्यूज़पेपर के मालिक गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखते थे तो उनको हरास मतलब परेशान किया जाता था. हरेसमेंट मतलब, हरेसमेंट इज व्हाट? परेशान करना. व्हाट इज हरेसमेंट? परेशान करना. परेशान करना, है ना. हिंदी में इसके लिए प्रॉपर वर्ड है प्रताड़ित करना, पर प्रताड़ित शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो मैंने उसी से मिलता जुलता एक शब्द दिया आपको, परेशान. तो गवर्नमेंट क्या करती थी? वो जो भी जर्नलिस्ट है उनको क्या करेगी? परेशान करेगी. The government ignored some court judgment that went against it and pressurized judges. He was forced out of office in 2017.
कई बार सरकार जो थी वो कोर्ट के जजमेंट भी नहीं सुनती थी। आखिरकार बड़ी मुश्किल से 2017 आते आते, यानी आज से लगभग कितने, मात्र 4 साल पहले रॉबर्ट मुगाबे को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। परंतु उससे पहले लगातार कितने साल तक, उससे पहले लगातार कितने साल तक, फॉर रेगुलर 37 ईयर्स, रेगुलर 37 ईयर्स, लगातार 37 सालों तक रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड ऑन द कंट्री। ठीक है। Now, this entire example of Zimbabwe shows that the popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. ये जो जिम्बाब्वे का केस है, ये बताता है कि रूलर्स मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। लोग, रूलर्स जो हैं, यानी देश में जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, गवर्नमेंट कौन इलेक्ट करेगा, पीपल ऑफ द कंट्री। परंतु सिर्फ इतना ही उस कंट्री को डेमोक्रेसी कहने के लिए सफिशिएंट नहीं है। समटाइम्स द पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकार है, वो कई बार कैसी हो जाती है, अनडेमोक्रेटिक हो जाती है। The popular leaders can be autocratic. जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक हो जाते हैं, यानी जब तक इलेक्ट नहीं हुए, जब तक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करी, तब तक तो एवरीथिंग वाज गोइंग वेल अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक वे। बट वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, after the formation of the government, now the government has started taking the decision as per their convenience. यानी जब तक सरकार नहीं बनी तब तक तो सब कुछ डेमोक्रेसी के हिसाब से अच्छा चल रहा था। परंतु एक बार गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में गवर्नमेंट अपनी मन मर्जी से रूल करना शुरू कर देती है। सो दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑटोक्रेटिक। ठीक है। वो कंडीशन क्या कहलाएगी? यस बेटा। सर, वेयर इज दिस कंट्री लोकेटेड? पार्डन सर, वेयर इज दिस कंट्री लोकेटेड? वेयर इज दिस कंट्री लोकेटेड, सर? Where is Zimbabwe located? Okay. Yes, sir. Zimbabwe is located in the continent of South America. ठीक है। चलिए, so if we wish to assess a democracy, it is important to look at the election, but it is equally important to look before and after the election. Election के पहले डेमोक्रेसी एडॉप्ट है और इलेक्शन के बाद में भी क्या डेमोक्रेटिक वे में रूल हो रहा है। ठीक है। इट मींस कि डेमोक्रेसी और द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मस्ट बी एडॉप्टेड बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। यानी इलेक्शन तो डेमोक्रेटिक वे में कंडक्ट होंगे ही होंगे, परंतु इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में भी कंट्री में इतना फ्रीडम लोगों को, अपोजिशन पार्टीज को मिलना चाहिए, सो दैट दे कुड हैव द राइट टू अपोज अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। लोगों के पास कम से कम इतने अधिकार होना चाहिए, वहां की जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इतने अधिकार होना चाहिए
कि वे क्या कर सकें, वो अपोजिशन पार्टी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जा सके। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, ये तभी हो सकता है when the state should respect some basic rights of the citizen, जब गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स ने देश के नागरिकों के कुछ बेसिक राइट्स को क्या करे, एक्सेप्ट करे। So they should be free to think, to have opinion, to express these in public, to form associations, to protest and take other political action। यानी देश के नागरिकों को इतना अधिकार होना चाहिए कि दे शुड बी फ्री टू थिंक, उन्हें अपने हिसाब से चीजों को सोचने का और समझने का मौका मिलना चाहिए। टू हैव ओपिनियन, ठीक है, उन्हें यह अधिकार होना चाहिए कि वो क्या कर सकें, वे अपनी बात लोगों के सामने रख सकें। Got it, बेटा? Yes, sir. Yes, sir. So everyone should be equal in the eyes of law। सभी के लिए कानून कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। These rights must be protected by an independent judiciary। और लोगों के ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार की रक्षा कौन करेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी करेगी। ठीक है, these rights must be protected by an independent judiciary। ठीक है, whose orders are obeyed by everyone। ठीक, यानी लोगों के जो राइट्स हैं, आम जनता के जो अधिकार हैं, उसका प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी किसका होगा, जुडिशरी का होगा। ठीक है, सो वी शैल रीड अबाउट दीज राइट्स इन चैप्टर 5। ठीक है, जो हमारा चैप्टर 5 होगा वो इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सो it is 8:45 students, so we are winding up the session here only। Okay, so that's all for today live class। Thank you students, have a nice day। Thank you, sir.